السلام علیکم جی، میرا نام سہیل عباس ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں رن with سہیل آفیشیل یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ہم نے یہ لاسٹ ٹائم جو اپنے کریٹیکل انالیسس ہم کر رہے تھے ستمبر کے اندر جو ایونٹس ہوئے ہیں، ہم نے 9/11 کی اینیورسری دیکھی، پاکستان افغان بلیم گیم دیکھا، تائیوان آرم سیل F-16 ڈیل، انطونیو گترس کا جو وزٹ تھا پاکستان، اور پرائم منسٹر میٹنگ ایٹ SCO، یہ دیکھی جو ملٹیپل ہیڈس کے ساتھ ان کی میٹنگز ہوئی تھی۔ اگر آپ نے وہ لیکچر نہیں دیکھا، آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی، تو میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں نے باکس میں شیئر کر دیا، آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ آج ہم جو دیکھیں گے وہ پی ایم کی جو سپیچ تھی، پاکستان کے پرائم منسٹر کی سپیچ ایٹ UN جنرل اسمبلی، اور پاکستان کے جو نیشنل ایشوز تھے بیسیکلی ان سپتمبر، ہم ان کو دیکھیں گے: نیشنل اکانومک، سوری پولیٹیکل، اکانومک، سوشل اور اسٹریٹجک۔ تو چلتے ہیں جی ہم اپنی نیکسٹ جو آج کا ہمارا لیکچر ہے اس کے اوپر۔ تو پرائم منسٹر صاحب نے 23 ستمبر 2022 کو UN جنرل اسمبلی کے 77ویں سیشن کے اندر خطاب کیا اوپر۔ وہاں پر ان کا جو اوور آل سپیچ تھی وہ 7 پورشن کے اوپر ڈیوائڈ تھی، مطلب کہ انہوں نے 7 چیزوں کے اوپر بات کی۔ سب سے پہلے انہوں نے پاکستان کے اندر جو فلڈس کی ڈیوسٹیشن تھی ان کے بارے میں بتایا، اور دنیا کو بتایا کہ the things which we are suffering today are because of you۔ ٹھیک ہے، پاکستان جو ہے اس کے اندر بہت ہی مائنر، ہمارا تو ہے ہی نہیں نہ ہونے کے برابر ہے جو کنٹریبیوشن ہے، تو یہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہمارے اوپر جو آفت آئی ہے، اس کا جو حل ہے وہ بھی آپ لوگوں نے نکالنا ہے۔ اور آپ کس طرح نکال سکتے ہیں؟ آپ کوشش کریں کہ کلائمیٹ چینج کو ایک سیریس تھریٹ سمجھیں اور اوائڈ کریں اپنی یہ جو کاربن امیشن ہے، اینڈ سو ٹھیک ہے۔ اور الٹیمیٹلی انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کو اس ٹائم ضرورت ہے دنیا کی کہ وہ ہماری ہیلپ کرے ان دس کرائسس ٹو اینڈ سچ سارٹ آف ایونٹس وچ ہیمپرنگ دا economy آف پاکستان وچ از آلریڈی ڈیریلنگ۔ تو نیکسٹ اگر چلیں تو پاکستان نے کشمیر ایشوز کے اوپر بات کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم ایک پیسفل نیبرہڈ چاہتے ہیں۔ ہمارا یہ ایک موقف ہے کہ پاکستان کو اور اوورال ریجن کی جو سیکیورٹی ہے اور ریجن کا جو پیس ہے وہ کشمیر کے سلوشن کے اوپر مضمر ہے۔ ہم انڈیا کے ساتھ بات چیت کرنے پہ تیار ہیں اگر انڈیا اپنے جو اگست 5 والا جو موو ہے اس کو ریورس کر دیتا ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں، ہم اسٹریٹجک ڈائلاگس کرتے ہیں، ہم کیپیسٹی بلڈنگ میئرس کریں گے جس سے ہمارے جو ریلیشنز ہیں ان کو ہم بوسٹ کر سکتے ہیں۔ ہماری جو اوورال اگر ہسٹری دیکھیں تو ہم 3 سے 4 وارز ہم لڑ چکے ہیں، لیکن وارز کسی بھی کنٹری کے حق میں یا کسی بھی کنٹری کے مفاد میں نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے بیسیکلی ایک پیسفل نیبرہڈ کی بات کی کہ ہمیں مل بیٹھ کے بات کرنی چاہیے اور اپنے ایشوز کو ریزالو کرنا چاہیے۔ نیکسٹ انہوں نے افغانستان کے اوپر کہا کہ ایک سیول وار ہو سکتی ہے، اس کو روکا جائے، بیکاز جو نیبرس آف افغانستان ہیں دے آر ناٹ ان اپوزیشن ٹو اکوموڈیٹ دی مور ریفیوجیز فرام افغانستان، سو وی مسٹ ہیو ٹو avoid such sort of situation and such sort of event which can trigger multiple or threats to the neighboring countries, some sort of like Pakistan, like Uzbekistan اور سنٹرل ایشین نیشنز جتنی بھی ہیں۔ نیکسٹ اگر انہوں نے جو بات کی وہ ٹیررزم کے اوپر بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ ایک شیئرڈ کنسرن ہے فار آل، اور اس کے لیے ہمیں ہم سب کو مل کے کرنا چاہیے۔ انہوں نے TTP ETIM IUB اور ان سب آرگنائزیشنز کے نام بھی لیے، اور انہوں نے کہا کہ ان سب کے خلاف ہمیں اکٹھا مل کے لڑنا چاہیے۔ نیکسٹ انہوں نے اسلاموفوبیا کے اوپر بات کی، اور انڈیا کے اندر جو مسلمانوں کی پرسیکیوشن ہو رہی ہے ان کے اوپر انہوں نے کافی ڈسکس کیا۔ اس کے بعد انہوں نے فلسطین ایشو کے اوپر بات کی، انہوں نے کہا کہ پاکستان جو فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ فلسطین جس طرح 1948 جس طرح اس کے بارڈرز تھے پری اسرائیل انویژن، وہ اسی طرح اس کو ریوائیو کیا جائے، اور یہ جو فلسطین کا ایشو ہے اس کو ریزالو کیا جائے۔ نیکسٹ انہوں نے UNSC کی ریفارمز کی بات کی، انہوں نے کہا کہ نیا جو پرماننٹ ممبر ہے وہ اگر آپ ایڈ کریں گے تو اٹ ول بی اے ڈیزاسٹر فار دا ورلڈ، سو کوشش یہ کریں کہ آپ نان پرماننٹ ممبرس کو بڑھا دیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ اوورال جو ریجنس کی جو ایک ڈیموکریٹک اسٹرکچر آف دا UN جنرل اسمبلی ہے یا اوورال UN ہے، وہ سوری UNSC کا ڈیموکریٹک جو نارم اور اسٹرکچر ہے آف UN، اٹ ول بی پرویلڈ۔ اور اگر فار ایگزامپل آپ نیا پرماننٹ کوئی ممبر بناتے ہیں تو وہ اٹ ول کریٹ اے نیو سینٹر وچ
would further violating the international law. ये उन्होंने किस बेस पे की बात कि अगर फॉर एग्जांपल इंडिया को कोई मिल जाती है यूएनएससी की मेंबरशिप, तो इट विल बी क्रिएटिंग मच मोर थिंग्स दैट कैन वायलेट इंटरनेशनल लॉ, क्योंकि वो पहले ही इतना कर रहा है। और इसके अलावा भी मतलब कि उन्होंने ना यूएनएससी की जो परमानेंट मेंबरशिप है उसको रोकने से वो किया है। इससे पहले अगर मैं बताऊं तो ये रिफॉर्म्स की बात क्यों हुई थी, क्योंकि बाइडन ने इस बार जो अपनी यूएन जनरल असेंबली की स्पीच थी उसके अंदर उन्होंने कहा था कि हमें यूएनएससी को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, बिकॉज ऑफ रशियन वीटोज अगेन एंड अगेन ओवर रशियन यूक्रेन वॉर। ये उन्होंने उनकी स्टेटमेंट थी कि पाकिस्तान इज़ अ पार्टनर ऑफ पीस। इसको मैंने थोड़ा सा अगर हम इसको एनालाइज करें कि पाकिस्तान कैसे है पार्टनर ऑफ पीस, पाकिस्तान डिड नॉट पार्टिसिपेट इन यमन वार, जो कि हमारे सऊदी अरबिया के साथ अपने रिलेशंस खराब होने का सबब भी बने थी। पाकिस्तान ट्राई टू मीडिएट केएसए एंड ईरान, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया एंड ईरान, ये भी एक पाकिस्तान का टुवर्ड्स अ पीस पोस्चर मूव था। पाकिस्तान प्लेड अ की रोल इन अफगानिस्तान पीस प्रोसेस। अब ये आप यहाँ पर अगर मुझे इस बार थोड़ा सा फील हो रहा है कि इस बार शायद इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा इधर उधर करके शायद इस बार कोई ऐसे का कोई ना कोई स्टेटमेंट आ जाए, और होपफुली कैन बी इन करंट अफेयर एंड पाकिस्तान अफेयर अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। सो ये तीन जो पॉइंट्स हैं ये आपने याद रखने हैं। और इसके अलावा जो चौथा पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जनरल कमर जवेद बाजवा साहब जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, इन्होंने इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग्स के ऊपर ये कहा था कि इट इज़ टाइम टू एक्सटेंड हैंड ऑफ पीस इन ऑल डायरेक्शंस। इन ऑल डायरेक्शंस मीन्स इन ऑल डायरेक्शंस, मीन आप ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, आप अपने इंडिया के साथ भी ये बात करना चाह रहे हैं। बेसिकली जो फोकस था वो इंडिया था। नेक्स्ट अगर हम नेशनल इश्यूज की बात करें तो सितंबर के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अपने उरूज पे रही है, ब्लेम गेम वाज देयर। और उसके अलावा एक्स पी एम जो इमरान खान साहब हैं उनके मल्टीपल किस्म की जो एक लैंग्वेजेस हैं वो काफ़ी एक पाकिस्तान के लिए अजीब रही थी, मतलब कि उन्होंने काफ़ी इंस्टीट्यूशंस को अड़े हाथों लिया। उसके अलावा उनकी जो मतलब कि ओवरऑल जो उनके स्टेटमेंट्स हैं वो काफ़ी एग्रेसिव थी। और जो हमारी अगर हम इसको एनालाइज करें तो हमारी जो सोसाइटी है वो काफ़ी पोलराइज हो रही है। और इससे जो अगर मैं इन माय ओपिनियन, ये एक मेरी पर्सनल ओपिनियन है, इट विल नॉट बी beneficial for the country as a whole, because it will be generating further polarization in your society which is already polarized in at multiple level। मतलब कि आप एथनिक लेवल पे आप सिंधी बलोची में बटे हुए हो, आप ऑलरेडी अगर देखें तो शिया सुन्नी में आप बटे हुए हो। और फर्दर ये ऑलरेडी हम पार्टियों के अंदर पॉलिटिकल जो हमारी एफिलिएशन है वो ऑलरेडी है। तो ये जो चीज़ें हैं ये इन चीज़ों को ना बूस्ट अप कर रही हैं। जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के जो स्टेटमेंट्स हैं ये काफ़ी ना हमें हमारी वो जो एक पोलराइजेशन है उसको बूस्ट अप कर रही हैं। दूसरा अगर देखा जाए तो वो हमें सिक्योरिटी जो हमारे नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके खिलाफ वो हमें भड़का रहे हैं। ठीक है, आप उनके साथ बात करें, आप उनके साथ बैठें, आप उनके साथ डिस्कस करें, दे आर आवर, अगर आप देखें तो वो हमें बचा रहे हैं ओवरऑल, और 70 साल से बचा रहे हैं। ये एक अलग बात है कि आप लोगों की ही नाअहली की वजह से आप उनको मौका देते हैं कि वो इंटरफेयर करें आपके पॉलिटिक्स के अंदर। आप सिंस 1947 से ऑनवर्ड आज तक देख लें, जब भी पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ है आपको आपके स्टेट इंस्टीट्यूशन ने ही आके बचाया है। आपकी आर्मी थी आपके बैक एंड पे, और जब भी आपके दरमियान के अंदर आपके पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर कोई मसाइल क्रिएट होते हैं तब भी आप उन्हीं के दरवाजे पे जाके नॉक करते हो और आप उनको कहते हो आए जी आप हमें मीडिएट करें। आपके मुल्क के अंदर कोई कहीं पर भी कोई एक सिक्योरिटी की सिचुएशन हो जाती है, कोई इमरजेंसी की सिचुएशन होती है, आप उन्हीं को बुलाते हो, आप उनको कहते हो जी आप आए, आप आगे टेक ओवर करें। जब आप खुद ही उनको इनवाइट करते हो, देन व्हाई आर यू ब्लेमिंग देम टू इंटरफेयर इन योर अफेयर्स? So you have invited them to interfere in your affairs. So first of all you have to stop this। आपको इतना कैपेबल होना चाहिए कि आप अपने मसाइल खुद हल करें। ठीक है, then you have to blame them, yes, now you can't interfere, and they will be, of course they will be on their back end, because when they see there is capable and political leadership there and that can be handle the situation in every situation, so why they will intervene?
सो इस चीज़ को ना मद्देनजर रखते हुए, ये एक मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आई डोंट के से दैट कि आपका इसके कुछ बरक्स भी हो सकता है। तो ये जस्ट एक मेरा पर्सनल ओपिनियन था। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इकोनॉमी के अंदर जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं वो चेंज हुए हैं। मिफ्ता इस्माइल से चार्ज ले लिया गया, इसहाक डार साहब को दे दिया गया। अब लेट्स सी कि वो हमारी इकोनॉमी को किस तरह लेके जाते हैं। इस टाइम इकोनॉमी पाकिस्तान की बहुत ही बुरी सिचुएशन में है। पाकिस्तान का इकोनॉमिक डाउनफॉल हुआ है आफ्टर द फ्लड्स। सितंबर के अंदर पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट है वो एट लीस्ट 2% गिरी है अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। उसके अलावा पाकिस्तान के जो करंट अकाउंट डेफिसिट्स है जीरो पे है। ये एक अच्छा मूव था कि पाकिस्तान के आईएमएफ के साथ जो डील है वो फाइनल हो गई और वो हमारा हुआ। लेकिन वो उधर से $1.2 बिलियन मिलना है हमें, लेकिन जो हमें नुकसान हुआ फ्लड्स की वजह से वो $40 बिलियन का एस्टिमेट हो रहा है अकॉर्डिंग टू शाहरुख खानी, जो कि एक इकोनॉमिस्ट हैं। सो मल्टीपल इश्यूज आर देयर, करेंसी डिवेल्यूएशन हो रही है, हमारी ट्रेड जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो हो रहा है, ट्रेड डेफिसिट का मसला है। ओवरऑल मतलब कि ना मल्टीपल बजट डेफिसिट्स का इशू होगा अब, क्योंकि फ्लड्स की जो रिहेबिलिटेशन और रिस्पांस है उसके ऊपर भी हमें बहुत कुछ लगाना होगा। सो मल्टीपल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर देयर। सो व्हाट विल बी the measures of the new finance minister, we will be looking in our next videos inshallah. Next अगर देखें तो सोशल, अगर देखें तो फ्लड्स रिमेन द फोकस इन सितंबर। बहुत ज़्यादा तबाही मचाई उन्होंने ओवरऑल सिंध के पी के और बलूचिस्तान के अंदर, टू सम एक्सटेंट पंजाब के एरियाज में भी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो $40 बिलियन का लॉस हुआ। और इसकी रिहेबिलिटेशन के लिए भी मुख्तलिफ पैकेजेस हुए। पंजाब ने पैकेज किया रिलीज, उसके अलावा सिंध ने किया, बलूचिस्तान की गवर्नमेंट कुछ कर रही है, केपीके की गवर्नमेंट कुछ कर रही है। उसके अलावा जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वर्ल्ड बैंक ने ₹6 बिलियन की वो की है रिहेबिलिटेशन ऑफ कराची। उसके अलावा जो इंटरनेशनल और नेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो एनजीओज और आईजीओज हैं, वो कुछ काम कर रही हैं, जिस तरह इंटरनेशनल रेड क्रॉस हो गई, ईदी हो गई, और मल्टीपल जितनी भी हैं। उसके बाद अगर हम स्ट्रेटेजिक डोमेन में देखें तो ऑडियो लीक्स का सिलसिला काफ़ी चलता रहा है। और ये एक हमारी एक नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट भी है फॉर the country that has nuclear capability and that surrounds with us aggressive neighbors like India and Afghanistan. तो पाकिस्तान ये एक नेशनल नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट है फॉर द पाकिस्तान सिक्योरिटी। और वेयर ब्लोज भी हैं पाकिस्तान को। अब अगर देखें तो पाकिस्तान के अंदर रिजीम चेंज हो रही है, ऑडियो लीक्स, ये कोई ना इसके बैक एंड के ऊपर कोई ना कोई एक ये है तो एक कॉन्स्पायरेसी थ्योरी, लेकिन someone is there on the behind who is plotting such sort of conspiracies and plotting some sort of एक एक जो एक्शंस वो कर रहे हैं टू डीरेल ओवरऑल पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, मतलब कि आप ये देखें ना कि कुछ इस तरह का तो हुआ है जिसकी वजह से विद इन अ डेज गवर्नमेंट भी चेंज हो गई, और उसके बाद फिर गवर्नमेंट्स के ये मल्टीपल इस तरह के लीक्स, और वो भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, जो कि मोस्ट सिक्योर होना चाहिए। तो इस तरह की ये जो चीज़ें हैं ये ओवरऑल नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट्स हैं। इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मैं कोई वीडियो भी बनाऊं। पाकिस्तान हैज़ टू थिंक अबाउट साइबर सिक्योरिटी टू सर्वाइव इन द 21st सेंचुरी। मतलब कि पाकिस्तान को अपनी जो ये लूप होल्स हैं उनको कवर करने के लिए पाकिस्तान को अपने जो सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स हैं उनके ऊपर लाजमी काम करने की ज़रूरत है। तो ये था जी हमारा ओवरऑल जो सितंबर के अंदर हुए थे इंसिडेंट्स, उनके ऊपर हमने एक क्रिटिकली एनालाइज किया है। तो इंशाल्लाह ताला बफज़ल खुदा होपफुली यू वुड लाइक इट, एंड इंशाल्लाह आई विल बी मेकिंग मोर वीडियोस ऑन सच सॉर्ट ऑफ थिंग्स लाइक अक्टूबर के एंड पे हम बनाएंगे, फिर नवंबर के एंड पे बनाएंगे, ताकि ये एक आपको जनरली 15-20 मिनट में, आधे घंटे में ना, आपको ओवरऑल एक माह के अंदर जो जो इवेंट्स हुए उनको आप एनालाइज कर सकते हो, एंड इट विल बी हेल्पफुल इन योर ultimately inshallah in your exam. So finally I would like to thank you for watching my video, and if you have not subscribed to my channel then do it. It will be helping you like this जो कि मैंने वीडियो बनाई है, और इंशाल्लाह फर्दर भी इसी तरह बनाता रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।